ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹਰ ਪਲ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧੂਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਧੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਨੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧੂਰਾ ਮਕਾਨ, ਅਧੂਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ, ਅਧੂਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਅਧੂਰਾ ਚਿੱਤਰ, ਅਧੂਰਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਇਹ ਜੀਵਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕਤਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਜੀਵਿਆ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਿਆਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸਮਗਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਕੱਸਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਣੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧੂਰੇਪਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ, ਧੁਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ, ਬੁੱਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਘੜ ਲੈਣਾ, ਤਸਵੀਰ ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 2-3 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2-3 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਭਾਵ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਗਲਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋਵਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਪਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
बहुत दुखी हो जाता है। और ऐसा भी मनसविद कह रहे हैं कि ऐसे मनुख कई दफ़ा निराश होकर धर्म मंदिरां ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। दरअसल हुक्म करना और करी जाना और हर एक ते करी जाना ये बहुत वड्डा औगण है। गुरु नानक दी बाणी दा कहना है, ऐ बंदे तू अपने अंदर हुक्म मनण दी भावना पैदा कर। हुक्म मनिए होवे प्रवाण तां खसमे का महल पाए सी। धर्म मंदिर दे आके तू हुक्म नहीं करना, हुक्म मनना है, गल मननी है। गल मनावण दे ते स्वाद है, गल मन्नण दे हंकार नूं चोट लगदी है, बहुत चोट लगदी है। इस वास्ते मनुख नूं बड़ी खुशी होंदी है उदों जद उसकी कोई गल मन लैंदा है, बहुत खुशी होंदी है। मेरे विचार मन लए ने अगले ने, मेरी गल मन लई है, मेरा हुक्म मन लिया। पर यह खुशी इसकी अधूरी है। जद इसनूं आखिया जाए तू भी किसी की गल मन, तो कहता नहीं मैं रद्द कर सकदा, ये विचार गलत ने, इसका कहना गलत है। तो दरअसल गल स्पष्ट हो रही है कि मनुख हुक्म करके राजी है, हुक्म मन के राजी नहीं। हुक्म मनण दा रूप ने गुरु अंगद देव जी महाराज एक दो साखियां ने जन्म साखी दे अंदर जो गुरु अंगद देव जी महाराज दे हुक्म मनण दी तस्वीर नूं, हुक्म मनण दी भावना नूं बड़े सोहणे ढंग दे नाल पेश कर दियां। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने एक दिन बहुत सारी संगत नूं वेख के अपने वड्डे साहिबजादे श्री चंद नूं कहा, बई बच्चिया ये जिहड़ा जंड दा दरख्त है इहदे उत्ते तू चढ़ जा, इनू हिला, इहदे चों मिठाई टपकेगी, आपां संगतां दे च वंडणी है। तां बाबा श्री चंद हथ जोड़ के कहण लगे, गुरदेव पिता कदी दरख्तां तो मिठाई टपकी है? ते दरख्त भी हो जो जंड दा दरख्त है, जिन्हों कोई फल भी नहीं लगता, फुल भी नहीं लगता, इहदे चों मिठाई कित्थे? थोड़ी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पे हो। तो साहिबा ने अपने छोटे साहिबजादे नूं बुलाया, श्री लखमी दास नूं। बच्चिया तू चढ़ जा, इस दरख्त नूं झाड़, मिठाई टपकेगी, आपां संगतां दे च वंडांगे। लखमी दास भी कहण लगे, गुरदेव पिता वड्डे भराता ठीक ही कहंदे ने, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी, और दरख्त जंड दा है जिन्हों कोई फुल ते फल भी नहीं लगते। आखिर गुरु नानक देव जी महाराज ने लहणे की तरफ इशारा किया, भजिया होया आया लहणा। साहब उसनूं कहंदे, जा तू इस दरख्त ते चढ़ जा। लहणा दरख्त ते चढ़न लग्या। श्री चंद लहणे नूं रोकदे ने, कहंदे ने, भाई लैणा जी कदी दरख्तां तो मिठाई टपकी है, ये की कर रहे हो? लोकी पगला कहणगे। तां भाई लैणा जी कहण लगे, बाबा श्री चंद जी इस दरख्त तो मिठाई टपके या ना टपके इहदे नाल साडा कोई मतलब नहीं, असीं ते गुरु दा हुक्म मनना। हुक्म मनिए होवे प्रवाण तां खसमे का महल पाए। एक होर सुंदर गाथा है कि एक दिन बड़ा खूबसूरत लोटा गुरु नानक देव जी महाराज के हथ दे सी। आप सहजे सहजे जंगल दे जा रहे ने, आपने वो लोटा एक ऐसे सरोवर दे सुट दिता जिस दे चिक्कड़ बहुत ज्यादा सी, पानी बहुत घट सी। ते फिर मेरे पातशाह श्री चंद नूं कहण लगे, ये लोटा कढ़ के लियाओ। श्री चंद कहण लगे, गुरदेव पिता जे ये लोटा कढ़ के लियाना है तो सुटिया क्यों है? फिर ते जे हुण असीं कढ़ के लियाईए तां कपड़े साडे गंदे हो जाणगे। असीं आप दे साहिबजादे हां, किसी नौकर चाकर नूं ये काम आखो, असीं ते आप दे साहिबजादे हां, साडी पोशाक गंदी हो जाएगी, साडे कपड़े गंदे हो जाणगे। गुरुदेव ने फिर लखमी दास नूं आख्या, अपने दूजे साहिबजादे ने, बच्चिया तू ये लोटा कढ़ के लिया। तो लखमी दास कहण लगे, गुरुदेव पिता उम्र थोड़ी वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पे हो, वड्डे भराता ठीक कहंदे ने। जे ये लोटा चिक्कड़ दे चों कढ़ के ही लियाना है तां सुटिया क्यों है? साडे सामने ही तुसीं सुटिया।
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ। ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੋਸੀਦਾ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੌ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਗਰ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰਾ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਝੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਰਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि समुचा अरब उत्थों की इस्त्री जात पड़दे विच ढकी हुई है, बुरके विच कैद है। एक चलदी फिरदी कैद उसदे कोल अठे पैर मौजूद है। जिथे अरब ढकिया होया है बुरके विच, उत्थे ईसाई जगत विच असीं देखदे हां बड़ी प्रबल नगनता है। पड़दे की मुखालफत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बड़े पुरजोर शब्दां च भगत कबीर ने भी की है। आप दा फरमान है, रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिनका अड़े, अंत की बार लहे गीना आंडे। ऐ इस्त्री ऐ बहू तो इस घुंड नूं रहण दे, क्यों कि घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अरनाचे। जिस दे मुखड़े दे उत्ते शर्म दा घुंड है, हया दा घुंड है, सच दा घुंड है, उन्हों कपड़े दे घुंड दी लोड़ नहीं। कपड़े दा घुंड तां उसनूं चाहीदा है जिहदे कोल शर्म नहीं, हया नहीं, सच नहीं। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज ने साफ कह दिता, इस्त्री कोई संपदा नहीं, धन नहीं कि इसनूं कपड़े दे छुपा के रखिए, लपेट के रखिए। पर्दा अणगिणत शरीरक बीमारियां नूं भी जन्म देंदा है। दूसरे पासे असीं देखदे हां ईसाई जगत बहुत नंगा है, बहुत नंगा है। अरब ढकिया होया है, यूरोप नंगा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने दोवें गल्लां दी मुखालफत कीती कि वो पर्दा भी नहीं चाहिदा जो इस्त्री दे सिर दा बोझ बन जाए, पर वो नगनता भी नहीं चाहिदी जिथों इस्त्री दी बेशर्मी रोम रोम दे टपक के बाहर आवे। आप दा फरमान है, रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा भाल। धार्मिक दुनिया विच आईयां हुईयां कुरीतियां, लोकी शगन अपशगन दे पुजारी सन। चलदियां होइयां किसे नूं निछ आ जाए तां इस नूं बदशगनी मनदे ने। रस्ते च कोई बिल्ली रस्ता कट जाए, इसनूं बदशगनी मनदे ने। किसे काम ते चलिया बाहर खोता बोल पे, इनू बदशगनी मनदे ने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा फरमान, शगन अवशगन तिसको लगे जिस चीत न आवे। शगन अपशगन दी मनोत उस दुनिया दे च है जिथे प्रभु चिंतन नहीं। जो ये समझदा है कि सब कुछ परमात्मा दे हथ दे च है, वो इन्हां बोसीदे रस्मों रिवाज का पुजारी नहीं होता। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी बड़ा सुंदर फरमान है, जब आपन आप उधारे तो शगन अपशगन कहाँ विचारे। सब कुछ परमात्मा दे हथ है, शगन अपशगन दे हथ दे कुछ भी नहीं है। और हर वक्त मनुख नूं अपनी डोरी परमात्मा दे हथ दे सौंप के रखनी चाहिए, उहदे हत्थां दे थमाना चाहिए। एक ऐसा पुरुष गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार दे च लिआंदा गया, जिहदे बारे उहदे शरीक कहंदे सन, इनू भूत चंबड़े ने, इनू प्रेत चंबड़े ने। पातशाह ये भूत प्रेत तुसी उतारो। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने इस कथा नू बड़े रोचक ढंग नाल लिखिया है। श्री मुख ते तब उत्तर कहो, प्रेत लग्यो जै सिख को लयो, सोने पढ़त होत जप रसना, जिन्हों कंठ तिन पर कछ बसना। साहिबां दा फरमान भी ये जिहड़ा प्रेत लग्या होया तुसी सिख लिआंदा है, इहदे कंठ दे जपजी नहीं होवेगी, इहदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं होवेगा। तो जिहदे कंठ दे जपजी नहीं, जिहदे हिरदे विच प्रभु दा प्यार नहीं, ऐसे बंदियां नूं की भूत ने चंबड़ना है। वो ते स्वयं भूत होंदे ने, वो ते स्वयं प्रेत होंदे ने। कबीर दा भी कहना है, जै घर साध न सेविए, हर की पूजा नाए, ते घर मरहट सार के, भूत बसे तिन माए। दरअसल एक मानसिक रोग है और उस वक्त पैदा हो जाता है जद मनुख प्रभु चिंतन तो बहुत दूर चला जाए और उसके कंठ दे गुरुदेव की बाणी ना होवे। इस तरह दीयां तमाम चलियां आ रही मनोतां नूं सिख जगत दे चों गुरु अमरदास जी महाराज ने बिल्कुल कढ़ दिता। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने
उस खाके दे केड़ा रंग भरिया है जिस खाके का चित्रण किया सी गुरु नानक देव जी महाराज ने। धर्म मंदिरां दी उसारी का जो जज्बा है ये गुरु रामदास जी महाराज की देन है। सतगुरु का फरमान से ऐ सिख जिथे बैठ के तू परलोक सवारना है, प्रभु का चिंतन करना है, वो घर भी बहुत सुंदर होना चाहिए। और तू ऐसे घर भी तामीर कर जिन्हां घरां दे उत्ते दूसरे भी दावा कर सकन। जैसे कि असी देखते हैं महाराज ने धर्मशाला सरावां दी बकायदा बुनियाद रख के तामीर शुरू कराई, जिथे आम साधारण मनुख आराम नाल रह सकन, मुसाफर रह सकन, जो साझा घर होवे, किसी एक व्यक्ति का ना होवे। इस तरह के जज्बे साहिब गुरु रामदास जी महाराज की देन ने। और ये बरकत असी देखते हैं कि सिख का अपना घर भावें कच्चा होवे पर वो गुरु का घर संगे मरमर का वेखना चाहता है। उसके अपने घर दे भावें पित्तल भी ना होवे पर गुरु का कलश ते वो सोने का वेखना चाहता है। ये उसकी शरधा है, ये उसकी भावना है। और ये जज्बा गुरु रामदास जी महाराज की देन है। जिस मनुख के अंदर धर्म मंदिरां की उसारी का जज्बा खत्म हो जाए, समझ लेना चाहिए उस दे अंदर गुरु रामदास जी का रंग नहीं है। तो जो रस्म वहम तो मात का पुजारी होवे उस मनुख के अंदर गुरु अमरदास जी की छो नहीं है। तो जिस सिख के अंदर हुक्म मनण की भावना ही ना होवे, समझ लेना चाहिए गुरु अंगद देव जी महाराज की विचारधारा उस दे अंदर नहीं वसी। जो खाका पूर्ण पुरख दा गुरु नानक ने चितरिया है, पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस खाके दे शांति का रंग भरिया। हर हालत दे ऐ सिख तू शांत रहना है। शांति की बकायदा एक कसवटी है। अगला सामने क्रोधी खड़ा होवे और ओदे बड़े तपे हुए शब्द निकल रहे होन ते फिर भी कोई शांत रह सकता है, तो समझ लेना चाहिए ये मनुख अंदरों शांत हो गया। जब मैनू कोई कहता है कि फलाना मनुख ते बिल्कुल शांतमई है, फलाना बिल्कुल त्यागी है, तो कई दफ़ा मैं नहीं मनता। कारण कि कसौटी है। जैसे एक माचिस की डब्बी नू मेरे सामने कोई लियावे ते आखे देखो ये ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है, तपश तो रहत है, तो कहना पेगा भी एक तीली कढ़ के जरा रगड़ के वेख अग है कि नहीं। एक एक तीली दे अग है, रगड़न की देर है। मनुख के अंदर बहुत अगन है, बड़ी अगन है। थोड़ा जिहा छेड़न की देर है, मनुख के अंदरों क्रोध भी पैदा हो जाता है, लोभ भी पैदा हो जाता है, वासना भी पैदा हो जाती है। जिवें माचिस की डब्बी दे गालबन 60-70 तीलियां ने, मनुख के अंदर अणगिणत चिनगारियां ने, बहुत सारे भांबड़ ने। बस उकसाहट के नाल ये अगन जिहड़ी है पैदा हो जाती है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कितने शांत ने कि वह तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत ने। अक्सर मनुख ठंडे कमरियां च बैठ के भी गर्म हो जाता है, ठंडे पहाड़ां ते बैठ के भी क्रोधित हो जाता है, ठंडियां छावां थले बैठ के भी अंदर तृष्णा की अग और क्रोध के भांबड़ उस दे अंदर बल उठते हैं। पर कोई तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत रह सकता है, शीतल रह सकता है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान खूबी है। शांति का रंग जिथे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भरिया, इस शांति नू कोई बुजदिली ना समझ लवे, कायरता ना समझ लवे, तो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रंग उस खाके विच भरिया। सिख का वीर रस होना भी बड़ा लाजमी, पर उसका वीर रस शांति दे चों पैदा होवे। जो वीर रस शांति दे चों जन्म नहीं लैंदा उसनू क्रोध कहंदे ने, वो वीर रस नहीं है। क्रोधी मनुख हमला आवर होंदा है, पर जो वीर रस अपने अंदर रखता है वो धर्म का मुआफिज होंदा है, कौम का रखवाला होंदा है, देश का रखवाला होंदा है। इस वास्ते वो अपने वीर रस का इस्तेमाल करता है। दबस्तान मजाहिब दे करता जनाब मोहसन फानी जो एक उगे लेखक होए ने और इतिहासकार होए ने, वो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बारे लिखते हैं कि एक मुगल सिपा सालार ने यके बाद ईगरे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ते 5 वार कीते तलवार दे। 6वें पातशाह ढाल नाल उस वार नू रोक दे रहे।
ਉਹ ਵਾਰ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਚੁਨਾ ਨਮੀ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ। ਐ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਇੰਜ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ, ਅਣਖ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ काट कूट के डारी कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। भगत कबीर कहते ने ये जो माया है मैं इहदा नक कट दिता है, कन कट दिता है, पर सवाल ये पैदा होंदा है भगत जी तुसी गर्दन क्यों नहीं कटी? गर्दन कटनी सी और भोग पा देना सी। पर कबीर कहते माया दी गर्दन है ही नहीं, मैं कट्टा किस तरह? उसदा ते सिर्फ नक है, उसदा ते सिर्फ कन है, मैं दोनों कन कट दिते ने, मैं उसकी नक कट दी है। दरअसल जो रूप कबीर पेश पे करते ने माया धारी दा सिर्फ नक ही आउंदा है ते कन ही आउंदे ने। भाव वो जो कम भी करदा है नक रखण वास्ते करदा है और कन्ना नाल फिर अपनी शोभा सुनदा है। कबीर कहंदे ने मैं जो कुछ भी करदा नक रखण वास्ते नहीं करदा और मैं कन्ना दे नाल अपनी शोभा भी नहीं सुनदा। नुमाइशी बंदे दी ये पहचान है, वो जो कुछ भी काम करना चाहता है बस नक रखना है। गुरु परमात्मा धर्म कर्म ये कोई मैंने नहीं रखते, उसकी नक ही बहुत वड्डी है। वो हर काम दे अपनी नक नूं ही अगे रखना चाहता है और कहता मेरी नक रह जानी चाहिए। धर्म रवे भावें ना रहे, सच्चाई रवे भावें ना रहे, गुरु की होंद रवे भावें ना रहे, पर मेरी नक रहनी चाहिए। तो जब नक रखण की कोशिश करता है तो कन्ना नाल
फिर शोभा सुनन दी भी उस दे अंदर भुख आउंदी है। कबीर कहंदे मैं कन्ना नाल हुण अपनी शोभा नहीं सुनदा ते मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करदा, मैं ते सच्चाई नूं मुख रख के ही कर्म करदा, ईश्वर नूं मुख रख के ही कर्म करदा। गुरु हरराय साहब जी महाराज दा यह कहना, ऐ सिख तू नक रखण वास्ते काम नहीं करना, तू सच नूं रखण वास्ते, सच्चाई नूं रखण वास्ते, धर्म नूं रखण वास्ते कर्म करना है और तू नुमाइशी ना बन। इस तरह की सादगी का जो रंग है, हकीकी जो रंग है, गुरु हरराय साहब जी महाराज ने उस खाके च भरिया। बाला प्रीतम बाल उम्र दे गुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज 8वें गुरु नानक ने उस खाके दे च केड़ा रंग भरिया, ये गल भी काबिले शुनीद है। साडे देश के चंद आलमां दा ऐसा कहना है कि बुजुर्गी जिहड़ी है ये 35 साल तो शुरू होंदी है। 35 साल तो उम्र जिसदी थल्ले है, घट है, उहदे बोल दे च बचकाना होवेगा, उहदे बोल सही नहीं होणगे, उहदी गल दे च पुख्तगी नहीं होवेगी, उहदे बचनां दे च दूरदृष्टि नहीं होवेगी। इस वास्ते साडे देश दा आलमां दा प्राचीन समय तो यह नारा लिया है कि जिसनों समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, राजनीति का मुखी बनाना है, उसकी उम्र घट तो घट 35 साल होनी चाहिए या 35 साल तो वध होनी चाहिए। 35 साल तो बिल्कुल थल्ले ना होवे, क्योंकि वह बच्चा है, उसकी गल दे पुख्तगी नहीं होगी और वह दूरदृष्ट नहीं होगा। बुजुर्गी नूं उम्र दे नाल ये नापण दा एक रिवाज चलिया। गुरु घर ने इस गल नूं नहीं मनिया कि शरीरक उम्र दे नाल ही अकल दा संबंध है, इस गल नूं नहीं मने। ईरान दे एक प्रसिद्ध संत शेख सादी साहब भी करीबन गुरु घर नाल सहमत ने। आप दा कहना है, बुजुर्गी बा अकल अस्त न के बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त न के बा माल। वो कहंदा है बुजुर्गी दा संबंध अकल नाल है, उम्र दे नाल नहीं। किसी हद तक अज साइंस भी सहमत हो गई है कि मनुख की शरीरक उम्र तो 80 साल की हो जाती है, लेकिन दिमागी उम्र 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की, 10 साल की ही रह जाती है। दिमागी तौर पर मनुख पूर्ण तौर पर उन्नत नहीं होता, शरीरक तौर पर उन्नत हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, पर दिमाग 13 साल ते ही रुक गया, 12 साल ते रुक गया, 11 साल ते रुक गया। इस वास्ते कई दफा देखने दे चाहता है कि बुढ़े बंदे भी बच्चियां वाली गल्लां करते हैं। तो इस कर्म का प्रतिकर्म भी हो सकता है, इसका उल्ट भी हो सकता है। लाजमी जे दिन है रात है, रात है तो दिन है। जे 80 साल के बुढ़े दे अंदर बच्चियां वाली अकल हो सकती है, तो किसी बच्चे दे अंदर बुजुर्गों वाली अकल भी हो सकती है। इस तो उल्ट भी ऐसा हो सकता है। जे बहुत सारे बुढ़े बच्चियां वाली तबीयत दे मिलते हैं, तो संसार दे कुछ ऐसे बच्चे भी होंदे ने जिन्हां दी तबीयत दे च बुजुर्गी होंदी है, जिन्हां दी सोचनी दे च बुजुर्गी होंदी है। ये गल ते स्पष्ट हो गई कि शरीरक उम्र दे नाल नाल दिमागी उम्र भी पूर्ण तौर पर वध रही होवे, ऐसा लाजमी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। पर हुण सानू पता किस तरह चलेगा कि ये बंदा बच्चा है तो ये बंदा बुजुर्ग है? क्योंकि उम्र करके तो साफ पता चल जाता है, ओदी वेशभूषा, उसका रंग रूप, नक्शो निगार दस दिन बई इन्नी उम्र का होवेगा। पर जे हुण उम्र करके नापना ही नहीं, शरीर करके नापना ही नहीं, अकल करके नापना है, तो फिर किस तरह पता चलेगा ये बुजुर्ग है तो ये बच्चा है? बच्चे की पहचान ये होंदी है कि उस दे अंदर खेडण की रुचि बड़ी प्रबल होंदी है, ते खेडण की रुचि करके वो खिडौणियां की मंग करता है, उन्होंने खिडौने चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसने खिडौणियां नाल खेडना है, उन्हें हर चीज़ नूं खिडौना बनाना है। कीमती तो कीमती वस्तु भी बच्चियां दे सामने खिडौना है और वो कीमती चीज़ नाल भी खेडण लग पैणगे। जे घर दे कोई खिडौना ना होवे तो मासूम बच्चा कई दफ़ा प्यो नूं भी कह देंदा है, तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। तो प्यो भी खिडौना बन जाता है, मां भी खिडौना बन जाती है, बच्चा ऐसा कर लेंदा है। ते जिस बच्चे की दृष्टि च प्यो खिडौना है, मां खिडौना है,
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਬੁੱਢੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਧਰੂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे। शरीर करके ये बच्चे ने, पर अकल करके ये बजुर्ग ने, महान ने। 80 साल का हरनाकश अपने बच्चे प्रहलाद नूं कहंदा है भी तू रसना दे नाल ये जाप जप, जल हरनाकश थल हरनाकश। ते 5 साल दे प्रहलाद कहंदे ने बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। हुण 80 साल का यह बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है ते 5 साल का जो बच्चा है ये बजुर्गों वाली गल करता है। अक्सर ऐसा होता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो पूछिए बई नाम किवें जपीए, बंदगी किवें करिए, तो बड़े सुंदर बोल दर्ज ने भगत कबीर दे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ए 80 साल दे बुढ़े परमात्मा दा नाम इंज जप जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपिया, जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपिया। तो उम्र करके ये बिल्कुल बच्चे ने। संसार दे इतिहास दे कुछ बच्चे ऐसे ने जो पूर्ण भगत होए ने। एक बच्चा ऐसा होया है जो पूर्ण सिख सी, पूर्ण। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जंगल विच बैठे सन। इस बालक ने मिसे प्रशादे और लस्सी दा भरिया होया लोटा गुरु नानक दे अगों रखे। सतगुरु ने प्रशादे छक ले, लस्सी पी लई, भांडे वापस कीते, आख्या बालक असी तृप्त हो गए, तू अपने भांडे चुक ले। ये बच्चा, ये मासूम बच्चा जिहदी उम्र 7 साल सी, हाथ जोड़ के कहन लगा बाबा भोजन छकण नाल शरीर तृप्त होंदा है, आत्मा किस तरह तृप्त होंदी है, मन नूं तृप्ति किस तरह नसीब होंदी है। हैरान हो गए गुरु नानक देव जी। उस मासूम बालक दे सिर ते हथ फेरिया, आख्या उम्र ते तेरी बच्चियां वाली है पर गल बुढ़ियां वाली करदा। 7 साल दे इस बच्चे दा नां बाबा बुढ़ा पै गया। और ये गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तक रहा, 6 पातशाहियां तक। हरिमंदर साहब का पहला हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी सी। 5 पातशाहियां नूं तिलक उसने अपनी हथी लाया। 7 साल की उम्र है ते गुरु नानक देव जी ने कह दिता बाबा बुढ़ा, तू ते बाबा बुढ़ा है, भावें तू बच्चा है पर तेरे अंदर बुजुर्गी छुपी हुई है। जे एक बच्चा बाबा बुढ़ा हो सकता है तो कई बुढ़े बाबे बच्चे भी हो सकते हैं, इस तो उल्ट भी हो सकते हैं। बेशुमार बुढ़े बच्चियां वालियां गल्लां करते हैं। उस तो पता चलता है कि इन्हां दा बौद्धिक तौर पर विकास नहीं होया, शरीरक तौर पर विकास हो गया है, बुद्धि का विकास नहीं होया। इस वास्ते बुद्धि दे बचकाना विचार अजे भी मौजूद ने। तो संसार के इतिहास दे कुछ बच्चे ऐसे हुए ने जो पूर्ण भगत सन, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण सिख होए ने, कुछ बच्चे ऐसे भी ने जो पूर्ण शहीद होए ने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडले 9 साल दे ते 11 साल दे सरहंद दे दीवार दे चिणे गए और अपनी जान दे दी, पर ईमान नहीं दिता, धर्म नहीं दिता, उम्र ते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े वड्डे मनुख डोल जाते ने, ये बालक नहीं डोले। तो कहना पेगा अकल इन्हां दी महान सी, सोचनी इन्हां दी महान सी। संसार दे इतिहास दे 2 बच्चे होर भी होए ने। उन्हें मुहम्मद साहब दे दोहते हजरत अली दे पुत्र हसन ते हुसैन। करबला दे मैदान दे यजीद ने प्यासे मार दिते,
तड़पा तड़पा के। लेकिन ये बच्चे झुके नहीं, जालम दे अगों नहीं झुके। मासूम सन, छोटे सन, प्यास बर्दाश्त कर ली। कड़क दी धुप दे च, इराक दी धुप, उस धुप दे च खड़ा कर दिता। करबला दे रेगिस्तानी मैदान दे च, जिथे लू अग वरसा रही सी, ये झुलस के तड़प तड़प के मर गए। लेकिन उस जालम दे अगों झुके नहीं। तो संसार दे इतिहास दे च कुछ बच्चे ऐसे भी ने जो पूर्ण शहीद होए ने। हकीकत राय दा भी अपना अस्थान है। 11 साल की उम्र है, शहादत प्राप्त की। सहजधारी घराने का यह सपूत से गुरु नानक की बाणी का इसके अंदर प्यार से। तो असी देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे ने जो पूर्ण शहीद होए ने, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण भगत होए ने, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण सिख होए ने। लेकिन खला मौजूद सी, बच्चा भगत ते बन गया सी, बच्चा शहीद भी हो गया सी, बच्चा दार्शनिक भी बन गया सी, दूरदृष्ट भी बन गया सी, लेकिन बच्चा अजय गुरु नहीं बनया सी। इस खला की पूर्ति कर दी गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप विराजमान होए और इस खला की भी पूर्ति कर दी। बच्चा भगत भी हो सकता है, बच्चा सिख भी हो सकता है, बच्चा शहीद भी हो सकता है, बच्चा गुरु भी हो सकता है। शरीर का गुरियाई नाल कोई मतलब नहीं, जमीर का गुरियाई नाल मतलब है। जमीर कितनी उच्ची है, बुद्धि कितनी उज्जवल है, आत्मिक बल कितना महान है। तो गुरु हरकृष्ण जी महाराज ये छाप लांदे ने कि बंदगी भजन का उम्र दे नाल कोई तल्लुक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का उम्र दे नाल कोई तल्लुक नहीं। बच्चा भी प्राप्त कर सकता है, जवान भी प्राप्त कर सकता है और बुढ़ा भी प्राप्त कर सकता है। जिस घर दे छोटे छोटे बालक जपजी साहब पढ़ रहे होन, सवेरे शाम नूं रहरास साहब का पाठ कर रहे होन, समझ लेना चाहिए इस घर दे गुरु हरकृष्ण जी महाराज का रंग मौजूद है, उन्हां दी देन मौजूद है, उन्हां दियां बरकतां मौजूद ने। बचपने तो ही बंदगी आरंभ करनी है। ये देन, ये रंग, ये जज्बा गुरु हरकृष्ण जी महाराज की देन है। जो खाका गुरु नानक ने चितरिया उस दे च नावें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने त्याग ते वैराग का रंग भरिया। आप कितने त्यागी ने, आप गुरियाई गद्दी दे मालिक ने, पर भोरे दे छुप के बैठे ने। ते जे गुरियाई गद्दी दे मालिक नहीं, वो बार 22 तख्त ला के गुरु होने का दावा पे करते हैं। इन्ने त्यागी, इतने वैरागी आप गुरु ने होंद नहीं प्रगट कर रहे, भोरे दे छुपे बैठे ने। अज एक ऐसा सिख आ गया जिन्हों गुरु वेखण की जांच सी, कदी कदाई किसी कोल ये जांच होंदी है। सच्चे सिख तो सच्चे गुरु का पता चलता है। झूठे गुरु झूठे सिखां दे आसरे ते संसार दे कायम रहिंदे ने। अज एक सच्चा सिख आ गया, इन्हें बाइयां नूं मत्था ते टेकिया पर शांति नहीं मिली। जिस तरह जलदे हुए दीपक कोल चले जाइए तो रोशनी मिलती है, हिमालय पर्वत ते चले जाइए तो ठंड मिलती है, फुलों के कोल बैठ जाइए तो महक मिलती है, रब नाल जुड़े हुए कोल बैठिए तो लाजमी आत्मिक शांति मिलती है। साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। मक्खण शाह लवाणे ने आखिर बकाले विच पुछ कीती, इत्थे सोडी बंस दा कोई होर भी रहिंदा है? तो एक छोटे जिहा दुकानदार ने दसिया, हाँ उस सामने भोरे दे एक रहिंदा है। की ना है? लोकी तेगा कमला कहंदे ने। पहुंचिया उत्थे भोरे दे, दर्शन करके निहाल होया, कोठे ते चढ़ के कहन लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। आप गुरु ने अपनी होंद नूं छुपा के रखिया है, पर अज जद किसी ने प्रगट कर दिता है गुरु नूं, तो गुरु ने चांदनी चौक दे अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। त्यागी इतने अपनी होंद नूं छुपा के रखिया है, पर जद होंद प्रगट हो गई तो अपने आप नूं देश ते धर्म तो कुर्बान कर छड़े। अपने श्वासां दी डोरी नूं तोड़ के आपने हिंदुस्तानियां दे जनेऊ दी डोरी नूं मजबूत कीता। अपना खून डोल के आपने हिंदुस्तानियां दे मत्थे दा तिलक बनाया। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी देन। जिस सिख दे अंदर त्याग दी भावना नहीं, वैराग दी झलक नहीं,
समझ लेना चाहिए उस सिख दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी का रंग नहीं है। त्याग ते मैराग दी छाप लाग के तस्वीर मुकम्मल हो गई, जिस दी कल्पना गुरु नानक ने की सी, जिस दा खाका गुरु नानक ने चितरिया सी। इतिहास का अध्ययन करिए तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कोई होर रंग नहीं भरिया। आम कहावत है कि बीर रस का रंग भरिया नहीं, बीर रस का रंग ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भर ही दिता सी। दरअसल तस्वीर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक मुकम्मल हो गई सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसनों फ्रेम किया। ये तस्वीर फटे ना, टुटे ना, मैली ना होवे, जाया ना होवे, इसनों फ्रेम करना बड़ा लाजमी सी, इसनों शीशे दे मड़ना बड़ा लाजमी सी। तो फ्रेम दे गालबन 5 चीज़ों की लोड़ पैंदी। एक ते चौखटा, 4 कणियां, 4 लकड़ां दा चौखटा ते एक शीशा। 5 चीज़ों के नाल तस्वीर नूं फ्रेम किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये 5 रहतां जो दित्तियां उस तस्वीर नूं फ्रेम कर छड़िया, जड़ दिता। और जब तस्वीर इन्हां रहतां दे फ्रेम दे जड़ी गई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने स्वयं सजदा किया। आपने खुद मत्था टेकिया, सिख दे अगों स्वयं सजदा किया, स्वयं मत्था टेकिया, आख्या तस्वीर मुकम्मल हो गई, पूर्ण हो गई। और इस तस्वीर नूं टंगिया आपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आधार ते, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आसरे ते फरमान किया, ऐ सिख जे तू बाणी नाल जुड़िया रहेगा, बाणे नाल भी जुड़िया रहेगा। जे तू अमृत वेले नाल जुड़िया रहा तो अमृत नाल भी जुड़िया रहेगा। ये मेरे पातशाह दी महान देन। जिस दिन आप हजूर साहब दे ज्योति जोत समान लगे ने तां आले दुआले सिखां ने खड़े होके बिने कीती, पातशाह सानू किस दे लड़ ला चले, साडा कौन मुहाफिज, असी किस दे नक्शे कदम ते चलांगे। तो साहब फरमान करन लगे, तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो प्रेरणा लैनी, राजनीतिक तौर पर, समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर थोड़ी रहबरी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करनगे। तो सिखां ने बेनती की, पातशाह गुरु ग्रंथ साहब थोड़े विचार ने, थोड़ी जोत है, थोड़ा फिलसफा है, थोड़ा ज्ञान है। कदी साडा दिल करे थोड़ा तन वेखना है, थोड़ा शरीर वेखना है, फिर असी कित्थे जावांगे, किहड़े पासे जावांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे उत्थे अगम्मी बचन, सिख सो रहत पंच जो मिल हैं, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आस। 5 रहतवानीए सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दे तन दे उत्ते 5 ककार होवन, जिन्हां दे हिरदे दे 5 बाणियां दा पाठ होवे, जिन्हां दे कंठ दे मूल मंत्र वसिया होवे, जिन्हां दी रसना दे उत्ते गुरु दा मंत्र होवे, ऐसे 5 दे अगर दर्शन हो जान तां साहब कहण लगे ये मेरे ही दर्शन होणगे। ऐ सिख निश्चय ही जान अज मैं ही तैनूं मिलिया, अगर ऐसे दर्शन तैनूं नसीब हो जान। सिख बड़े सियाणे सन, हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह किसी ऐसे शहर दे च, पिंड दे च, कस्बे च साडा रहना होवे ते 5 दे दर्शन ना होवन ते तुहाडा तन देखे बिना, तुहाडा शरीर देखे बिना सानू चैन ना मिले, फिर असी की करिए। लंबी सोच तो बाद मेरे पातशाह कहन लगे, अच्छा कोई एक भी मिले जिहदे तन दे उत्ते 5 ककार होवन, जिहदी रसना दे उत्ते गुरु दा मंत्र होवे, जिहदे कंठ दे च मूल मंत्र होवे, जिहदे हिरदे दे च बाणी दा वास होवे, समझ लेना चाहिए अज मेरे ही दर्शन होए ने, अज मैं मिलिया। लेकिन सिख इस दे नाल भी तसल्ली बख्श ना होए, हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह जे एक भी ना मिलिया ते फिर किसी ऐसे शहर दे च, किसी ऐसे मुल्क दे साडा वासा होवे ते इस तरह दे एक दे भी दर्शन ना होवन, फिर की करिए। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, ऐ सिख तैनूं दूर जाण दी लोड़ नहीं, तैनूं भटकण दी लोड़ नहीं, तू अमृत वेले उठे, 5 बाणियां दा पाठ करी, गुरमंत्र दा जाप करी, मूल मंत्र दा जाप करी, तन दे उत्ते रहता सजावी ते ज्यों शीशे दे अपना मुखड़ा वेखेगा वो मुखड़ा भी मेरा ही होवेगा।
ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। शरीर करके गुरु, गुरु खालसा है, और जमीर करके गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने इस वास्ते एक कहावत प्रचलित हो गई, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ। गुरु पंथ गुरु दा शरीर है, गुरु ग्रंथ गुरु दी आत्मा है। जैसे बुनियाद बिना मकान तो भी हो सकती है, पर मकान बिना बुनियाद तो नहीं हो सकता। जड़ां ते बिना दरख्त तो भी हो सकदियां ने, पर दरख्त बिना जड़ां तो नहीं हो सकता। गुरु ते बिना सिख तो भी हो सकता है, पर सिख बिना गुरु तो नहीं हो सकते। तो गुरु ग्रंथ गुरु दी आत्मा है और गुरु पंथ ये शरीर है। आत्मा शरीर तो बिना भी रह सकती है, पर शरीर आत्मा तो बिना नहीं रह सकता। तो गुरु दी आत्मा है गुरु ग्रंथ, गुरु दा शरीर है गुरु दा पंथ। गुरु दे पंथ दे दर्शन गुरु दे शरीर दे दर्शन ने, गुरु ग्रंथ दे दर्शन गुरु दी आत्मा दे दर्शन ने। साहिबा ने मान नाल कह दिता, खालसा मेरा अपना रूप है, खास रूप है, और खालसा शरीर करके गुरु है। खालसा गुरु है, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीने हो शंका न कीजे, सावधान होए दीजे अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीने हो। जद सिख दे बारे मेरे पातशाह ने इतनी सिफत व सलाह की थी कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं, तेरा सदका ही मैं सजिया। दरअसल कोई चंगा बच्चा होवे, उन्होंने वेख के कहना पैंदा है इदी मां धन है, इदा पिता धन है, क्योंकि बच्चा खुशपोश है, खुश मिजाज है, चंगी तबीयत दा मालक है। चंगे सिखां नूं वेख के गुरु दी महिमा वधदी है। तो साहब कहने लगे तू ते मैनू सजा छड़िया, तू मैनू महान बना छड़िया। तो जापदा किसी ने संसा प्रगट किया है, ये किधरे खुशामद ते नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थे मान नाल कह दिता है, या में रंच न मिथ्या भाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी जान के कहना, तू मेरा रूप है मैं तेरा रूप हाँ। जैसे नदी दी मंजिल है सागर, सिख दी मंजिल है गुरु। जद सिख गुरु तक पहुंच जाता है, मंजिले मकसूद तक पहुंच जाता है। केड़ा सिख गुरु तक पहुंच जाता है? जिस सिख नूं वेखदे हैं गुरु याद आवे, जिस सिख नूं वेखदे हैं परमात्मा याद आवे। सिख गुरु, गुरु सिख है, नाम